में आप लिखने की वीडियो, बाबा की देखने की वीडियो हम देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये 2025 5 में मैं अभी हाँ। भी लिखता हूँ। डेली मैं हाँ। edit करके सामने मुरली लिखता हूँ, तो ड्रामा अनुसार कल दिखाया। ओ। अच्छा लगा। तो आज का बहुत सुंदर टॉपिक है। हम हाँ। निर्विघ्न कैसे बने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। நிர்விঘ்னம் எப்படி ஆகுவது இந்த டாபிக்ல இப்ப பிரதர் நமக்கு சொல்றாங்க. நிர்விঘ்னம் தடையற்றவர் எப்படி ஆகுவது. இப்ப நமக்கு பிரதர் பாயிண்ட் கொடுக்கறாங்க. विघ्न चार प्रकार के होते हैं। एक तो जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाले विघ्न, वो हमारा अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, सम्मान नहीं देंगे, कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और कभी हम उसके साथ अच्छा करते हैं, वो हमारा बुरा करते हैं। और इन बातों से हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसको भी विघ्न कहेंगे। आपस में साथ में रहने वालों की तरफ के विघ्न। ஒரு விக்னம் என்னவா, பாய்ஜி சொல்றாங்க. ஒரு விக்னம் என்னவா, ஒரு தடை என்னவா, மனிதர்கள் கூட இருக்கிறீங்க. 5 பேர், 10 பேர் ஒரு குரூப்ல இருக்கிறோம். அந்த மனிதர்கள் அவமானப்படுத்துறாங்க, ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கல. அப்போ குரூப்ல இருக்கும்போது நமக்கு சங்கல்பா தாட்ஸ் எப்படி இருக்கு, நம்மளோட டைம் எப்படி இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்க. அப்ப எவ்வளவு வேஸ்ட் ஆகும் இல்லையா? இது கூட ஒரு தடை. दूसरा विघन है पुराने संस्कारों की तरफ से आने वाला विघन। कभी कभी हमारे काम विकार के संस्कार जागृत हो जाते हैं। कभी कभी किसी के दोष देखने के संस्कार जागृत होते हैं। किसी के निंदा करने के संस्कार जागृत होते हैं। हमारे खुद के संस्कार, लोभ लालच के संस्कार। तो संस्कारों के तरफ से आने वाले विघ्नों में भी हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे हमारा वायुमंडल भी खराब हो जाता है। ये भी एक विघ्न है। இரண்டாவது சொல்றாங்க, பாருங்க, நீங்க உங்களோட சன்ஸ்கார் ஒண்ணு தேவதா சன்ஸ்காரா இருக்கணும், பிராமண சன்ஸ்காரா இருக்கணும். அப்ப ரைட்டா இருக்கும். அப்படி இல்ல, பவித்திரதா சன்ஸ்கார் இல்ல அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. வெறுப்பு வருது, சிலர் மீது வெறுப்பு வருது, சிலர் நிந்தனை பண்றோம், அல்லது கோபம் வந்துடுது. இப்படி ஏதாவது அதுவும் டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் பிறர் அபிமானம் அவமானம் வரும்போதும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கலைனாலும் டைம் வேஸ்ட் பண்றோம். இரண்டாவது நம்முடைய சன்ஸ்கார் காரணத்தினாலையும் டைம் வேஸ்ட் பண்றோம். இரண்டு தடைகள். तीसरा विघन है प्रकृति के द्वारा आने वाला विघन। कभी कभी हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। कोई कोई हमें सर्दी गर्मी का मौसम आ जाएगा। कभी बीमारी हो जाएगी। ये भी एक प्रकार का विघन है। इससे भी हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे भी हमारे मतलब काफी सारे ये भी एक विघ्न है हमें पुरुषार्थ में। அதே போல பாருங்க, இயற்கை, நேச்சுரல் இயற்கை இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, சில நேரம் ஹெல்த் முடியல, அப்ப கூட நம்மளோட டைம் வேஸ்ட் ஆகும். ஹெல்த் முடியல, அந்த நேரம் யோகா பண்ணி பார்ப்போமே. ஹெல்த் முடியல, அந்த நேரம் கூட பாபா என்ன சொல்றாங்களோ அதை தாரணை செய்து பார்ப்போமே. எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? அப்ப அந்த நேரமும் டைம் வேஸ்ட் பண்றோம். और चौथा विघन है हमारे, कभी कभी हमें दूसरे तंग नहीं कर रहे। हमारी कोई बीमारी भी नहीं है, कोई हमारे संस्कार भी ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारी खुद की कर्मेंद्र के द्वारा आने वाला विघन। कभी हमारी वही बुद्धि परमधाम को देखती थी, वो बुद्धि क्या होती है, किसी देहधारी का ही चित्र सामने लाती है। जो मन हमारा परमधाम में जाता था, वो मन क्या करता है, वेरस सोचना शुरू करता है। जो हमारी आंखें धोखा देते, जो आंखें बाबा को देखती थी, योग में बैठते नींद करती है। वो जो कान रोज मुरली सुनते हैं, वो कान पर चिंतन सुनने की बातें, कभी कोई गीत सुनने की, कोई फिल्म देखने की। तो ये भी इस प्रकार की इंद्रिया धोखा देती हैं। और इंद्रिया धोखा ये भी एक विघ्न है, इसमें भी हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इन चारों विघ्नों में जो निर्विघ्न है उसको कहेंगे निर्विघ्न। இந்த 4 விக்னங்கள்லயும் தடையற்றவர் ஆயிட்டோம்னா
நிர்விக்னம். விக்ன விநாசக் நிர்விக்னம். ஃபர்ஸ்ட் விக்னம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்மளுடைய சன்ஸ்கார் இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட சன்ஸ்கார் அப்படி இருக்கணும், பவித்திர சன்ஸ்காரா இருக்கணும். மற்றவங்களை வெறுக்கிறது, நிந்தனை பண்றது அப்படி இருக்கக்கூடாது, அதுவும் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஒன்று. இன்னொன்று, மனிதர்கள் நமக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கல, நமக்கு அபிமானம் அவமானமா இருக்கு, அப்பவும் நம்ம டைம் வேஸ்ட் போடுவோம், சங்கல்பா டைம் கரெக்டா இருக்காது. மூன்றாவது இயற்கை, நமக்கு ஹெல்த் முடியலைனாலும் நம்மளோட டைம் வேஸ்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். நான்காவது பரந்தாமத்தை பார்க்கணும், ஸ்ரீ பாபா பார்க்கணும், அவ்வளவுதான். மனது புத்தி ஸ்தூலமா பாபா போட்டோ முன்னாடி இருக்கிறோம், சூட்சுமமா பரந்தாமத்தை பார்க்கணும், சிவபாபா பார்க்கணும். ஆனா பார்க்க முடியல, ஏதாவது விஷயம் நினைவு வருது, ஏதாவது மனிதர்களோட நினைவு வருது, கர்ம இந்திரியங்கள் யாரையாவது எதையாவது நினைக்குது, அப்போ இந்த 4 விஷயத்தின் மீதும் வெற்றி அடைந்தால்தான் விக்ன விநாசக் நிர்விக்னம். तो सबसे पहले हमें आपस में हमारा कोई अपमान करता है, कोई हमें सम्मान नहीं देता, कोई हमें विघ्न रूप में बड़ों को जाकर हमारी कोई बुराई सुनाता है, ऐसे समय पर भी हम अपनी स्थिति को अचल अडोल रखने के लिए हम क्या करें, उसमें कैसे निर्विघ्न बने, इसके बारे में पहली चर्चा करते। ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஸ்திதி அச்சல் அட்டோலா இருக்கணும். விக்ன விநாசக் ஆகுவதற்கு ஸ்திதி அச்சல் அட்டோலா இருக்கணும், அதை பத்தி கேட்போம். इन चारों विघ्नों के वश होने से, चारों भी, तो इससे एक तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, संकल्प वेस्ट हो जाते हैं, इससे वायुमंडल खराब हो जाता है, हमने जो की कमाई चट हो जाती है, ब्राह्मण जीवन एक युद्ध का जीवन अनुभव होता है। அடுத்து சொல்றாங்க, நாம நம்மளோட ஸ்திதி அச்சல் அட்டோலா இருந்தால், விக்ன விநாசக் நிர்விக்னமாக இருந்தா ரைட்டு. அப்படி இல்லைன்னா பிராமண வாழ்க்கையே எப்படி நமக்கு அனுபவமாகும்? நம்மோட வைப்ரேஷன், நம்ம இருக்கிற இடத்தோட வைப்ரேஷன் எப்படி இருக்கும்? और चारों विघ्नों के वश होने से हम इंद्रियों के वश हो जाते हैं, उसके बाद हमारा योग में नींद आएगी, क्योंकि इसमें संकल्प विकल्प ज्यादा चलते हैं, हमें ना आत्मानुभव ना परमात्मा अनुभव होता है, ना शांति का अनुभव, और खुद हम रोते रोते मतलब औरों को जाकर सुनाएंगे, अरे कुछ मुझे कुछ युक्तियां सुनाओ, मुझे मेरा योग ही नहीं लगता, मुझे शांति का अनुभव नहीं होता। फिर ये क्या होता है, कभी कभी फिर जब ये सुख शांति का अनुभव नहीं होता योग से, तो आत्मा क्या करते हैं, फिर पुरानी आदतें, पुराने वश हो जाते हैं, पुरानी दुनिया में भी चली जाते हैं। इसलिए हम इन चारों विघ्नों में निर्विघ्न रहने वाला वैरागी बन जाता है, वो दूसरों को सुनाने के बिना रहेगा नहीं, वायुमंडल को शुद्ध, इसलिए निर्विघ्न बनना बड़ा जरूरी। நிர்விக்னம் ஆக வேண்டும், விக்ன விநாசக் ஆக வேண்டும். அப்போ இந்த 4 விஷயத்தின் மீது வெற்றி அடையணும். இந்திரிய ஜீத், கர்ம இந்திரியங்கள் மீது வெற்றி அடையணும். எப்படி சொன்னாங்க இல்லையா, பரந்தாமத்துல இருக்கிறேன், ஸ்ரீ பாபாவை பாக்குறேன், ஆத்மா அப்படின்னா அதை மட்டும் தான், இன்னொன்னு நினைக்க கூடாது. அப்படி இந்திரிய ஜீத் ஆக வேண்டும், அனுபவம் செய்ய வேண்டும், ஆத்மா அனுபவம் இருக்கணும், வைராகியம் வரணும். இப்படி இருந்தால்தான் நிர்விக்னம் விக்ன விநாசக் அப்படி சொல்ல முடியும். तो इसीलिए इन चारों में भी हमें निर्विघ्न जो बनता है, उनकी स्थिति शक्तिशाली होती है, और जिसकी खुद की स्थिति शक्तिशाली है, वो अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछता है, आज उसको सेवा का उमंग उत्साह आता है। अगर हम खुद विघ्नों में, तो हमें सेवा का भी इतना अच्छा उमंग नहीं आता। इसलिए इन चारों विघ्नों में हमें निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करना है। நாம இந்த 4 விக்னங்கள் மீது வெற்றி அடைய வேண்டும், நிர்விக்னமாகணும். நம்மளோட ஸ்திதி அச்சல் அட்டோலா இருக்கணும், சேவை செய்யணும், சேவை செய்வதற்கான ஊக்க உற்சாகம் இருக்கணும், பிறருக்கும் ஊக்க உற்சாகம் கொடுக்கக்கூடியவங்களா இருக்கணும். யாரோட ஸ்திதி நல்லா இருக்கோ ஊக்க உற்சாகமா சேவை பண்ணுவோம், பிறருக்கும் பண்ண வைப்போம். तो आपस के संस्कारों में अगर हम विघ्नों में हैं, तो जो व्यक्ति हमें विघ्न निर्माण करता है, हमारे अपमान करता है, निंदा करता है, उसके लिए हमारे संकल्प निगेटिव चलेंगे, उसके लिए शुभ भावना नहीं रहेगी, दुआएं नहीं निकलेगी, कहेगी इसको दुआ में कभी नहीं दे सकता हूँ, इसने मेरे साथ क्या किया क्या। फिर उसका पर चिंतन दूसरों को सुनाएंगे, हाँ औरों को खुद तो चिंतन करेंगे, औरों को भी सुनाएंगे, फलाने ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और इससे वही मंडल भी खराब हो जाएगा, आपस में संबंध और ही दूरी आपस में पैदा होती है। कभी कभी मुख से बोलेंगे भी, कभी कभी आंख भी दिखाएंगे, कभी गुस्सा भी करेगा,
ये सारी बातें, फिर इन सब चीजों से फिर हम बाबा की प्रत्यक्षता नहीं कर सकेंगे। कहेंगे इनका ये आपस में बनता नहीं, हाँ, या दूसरे को सुना रहे, फिर सेवा करने का भी उमंग नहीं आएगा। யாரு தன்னோட ஸ்திதிய அச்சல் அட்டோலா நிர்விঘ்னமா வச்சிருக்காங்க, அவங்களாலதான் சேவா பண்ண முடியும். யாரு தடை ஏற்படுத்துறாங்க, யாரு விக்னம் தடை ஏற்படுத்துறாங்க, அவங்க கிட்ட சுபபாவனை வரல, கோபம் வருது, வெறுப்பு வருது, அப்புறம் நம்மளால எப்படி சேவை செய்ய முடியும்? அப்ப சேவை செய்ய முடியலன்னா வாழ்க்கை, பிராமண வாழ்க்கை கூட எப்படி அனுபவமாகும்? और आपस के जो संस्कारों में विघ्नों में है, आपस में किसी के साथ बनती नहीं, तो उसका फिर हम परचिंतन, जैसे कल भी बाबा ने कहा कि कई बच्चे क्या करते हैं, फलाने ऐसा है वो ऐसा है करके, और जबकि बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्म गति का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान ये दिया है, लेकिन ये सब बातों को हम भूल जाते हैं। और इसीलिए निगेटिव संकल्प चलने से मन भारी होता है, और जिसका मन भारी है, योग में बैठता है, उसका मन ऊपर जाएगा ही नहीं, मन भटकेगा। अब जिसका मन भटकेगा उसकी बुद्धि भी भटक जाएगी, वो कर्म योगी नहीं बन सकता, वो बैठ करके योग भी नहीं लगा सकता। யாரு நெகட்டிவ் தாட் பண்றாங்க அவங்களுக்கு யோகா வராது. பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருந்தால்தான் அவங்களால யோகா பண்ண முடியும். பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருந்தால்தான் யோகா பண்ண முடியும். கர்ம யோகாவும் பண்ண முடியும். புத்தியானது பரந்தாமத்தை பார்க்கும், ஸ்ரீ பாபாவை பார்க்கும். और इसी तरह से आपस में विघ्नों में हम जब रहते हैं, जिसके प्रति विघ्न है, मतलब हमारी वृत्ति खराब हुई, उसको देखते ही हमारे मन में वही विचार है कि अच्छा, फिर वो हंसता है, लगता है मुझे देखकर जरूर हंस रहे हैं, वो किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर रहे हैं, आपस में दूरियां पैदा होती है। और उसके कारण फिर हमारा मन भारी होता है, योग युक्त नहीं हो सकते, कर्म योगी नहीं बन सकेंगे, स्थिति हमारे चेहरे में भी खुशी नहीं होगी। और इन सब चीजों से मन हमारा थक जाता है, और थका हुआ मन जब योग में बैठता है तो स्थूल रूप में नींद आती है, मानसिक रूप से बीमार, शारीरिक रूप से बीमार भी होंगे। इसीलिए हमें आपस के विघ्नों में निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करना है। நாம நிர்விக்னம் ஆகக்கூடிய முயற்சி செய்ய வேண்டும். நிர்விக்னம் விக்ன விநாசக் ஆகக்கூடிய முயற்சி செய்ய வேண்டும். விருத்தி எப்படி இருக்கணும்? சுபபாவனை பண்ணக்கூடியவங்களா இருக்கணும். இல்ல மனசு லேசா இல்ல, அப்போ எப்படி அவங்க யோகா பண்ணுவாங்க? மனசுல ஏதாவது ஏதாவது சுமை இருக்கு, அப்ப எப்படி யோகா பண்ணுவாங்க? யாரையாவது நினைக்கிறாங்க, யார் தடை ஏற்படுத்துறாங்களோ அவங்க மேல கோபம் இருக்கு, வெறுப்பு இருக்கு, சுப விருத்தி திருஷ்டி இல்லைன்னா அவங்க எப்படி யோகா பண்ண முடியும்? கர்ம யோகி ஆக முடியும்? மனது லேசா இருந்தால்தான் யோகா பண்ண முடியும். மனது லேசா இருக்கணும்னா சுபபாவனை மட்டும்தான் இருக்கணும். तो आपस के विघ्नों में हमें निर्विघ्न बनने के लिए क्या करना है? बाबा ने हमें कहा कि हर एक का पार्ट अपना अपना है, उसका पार्ट अपना ही, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, उसको भी स्क्रिप्ट मिला हुआ है। जैसे जिनके संस्कार है, जिनका जिनका पार्ट है, सब बजा रहे हैं, इसलिए उसकी कोई गलती नहीं, उसके पार्ट है, जैसा मिला है मेरे साथ में बजाने का वो बजा रहे हैं। जैसे कोई नाटक होता है या कोई फिल्म होती है, वो उस समय डायरेक्टर क्या करता है, सबको स्क्रिप्ट बांट के देता है। इसी तरह आज हमारी पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, सास की स्क्रिप्ट अलग है, हर एक्टर की अपनी अपनी स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट अनुसार डायलॉग बजा रहा है, उसके लिए कोई गलती नहीं। अगर उसने गाली भी दी तो क्या कहोगे, वाह इन्होंने कितना अच्छा पार्ट बजाया, मजा आ गई। तो ये सब चीजों में हमें हल्के रहेंगे, इसलिए उसका ये निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं, वो समझ करके हमें संकल्प नहीं चलाना। நம்மளோட சங்கல்பத்தை நாம வேஸ்ட் பண்ண கூடாது. டைம் தாட்ஸ் நாம வேஸ்ட் பண்ண கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணிடணும்? யார் என்ன பார்ட் நடிக்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு என்ன பார்ட் கிடைச்சிருக்கோ நடிக்கிறாங்க, ரொம்ப நல்லா ப்ளே பண்றாங்க, என்ன இப்படி பேசுறாங்க, என்ன இப்படி நடந்துக்கிறாங்க, ஒரு பிகே இப்படி பண்ணலாமா, இத்தனை வருஷம் யோகா பண்றாங்க அவங்க இப்படி பேசுறாங்க, அப்படி நினைக்காதீங்க. அப்படி டைம் தாட்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. அவங்களுடைய பார்ட்ட அவங்க கரெக்டா ப்ளே பண்றாங்க. அவங்களுக்கு என்ன ரெக்கார்டிங் இருக்கு ஆத்மால, அவங்களுடைய பார்ட் என்னவா இருக்கு, அவங்க கரெக்டா நடிக்கிறாங்க, அச்சா நல்லா ப்ளே பண்றாங்க, அப்படிதான் நினைக்கணும். அவங்களோட குறை பார்க்க கூடாது. நாம நம்மளோட ஸ்திதி மனம் விக்ன விநாசகா இருக்கணும், நிர்விக்னமா இருக்கணும், நம்மளோடது கரெக்டா இருக்கணும்.
इसलिए ऐसी आत्मा की कोई कमजोरी देख करके हमें दुआ देने के बजाय हम क्या करते हैं, जैसे बाबा ने कल की मुरली में भी खास इस बातों के बारे बाबा क्या करता है, गिरे हुए को क्या करता है, उठाता है। और हम क्या करते हैं, जिनको बाबा ने उठा करके चलना सिखाया, और उसको अगर हम लात मारेंगे तो बाबा कैसे हमको प्यार करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, अगर कोई का संस्कार के वश में है, जैसे किसी व्यक्ति को बीमारी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ खाना पीना पूछते हैं, भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। इसी तरह कोई भी आत्मा कोई गला संस्कार के वश में है, बुराई के वश में है, तो हमको और ही दया आना चाहिए। बेचारा इसको आज क्रोध ने इसको घेर लिया है, कितना ये अच्छा था, ये देखो। इसी दुआ ही दो उसको, नहीं तो उसकी और ही बाबा ने उसको चला है, उसकी किसी को उसने मेरे साथ ऐसा किया, पता नहीं क्रोधी है, पता नहीं वो ऐसा है। वो ऐसा नहीं है, वो ओरिजिनल में शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। लेकिन आज उसके अंदर क्रोध का भूत या कोई निगेटिव का भूत आया है, और उसके कारण आज वो बिगड़ा हुआ है, ये बीमार है। तो बीमार वालों को हमें चुप रह करके सकाश देना है, साइलेंस में रहना है, ये करना है, न कि उसकी बुराई फैला करके। तो और ही विघन पैदा होते जाएंगे, बेचारा उसको भी तकलीफ हो जाएगी और हमें भी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए विकार क्या करते हैं, आपस में लड़ाते हैं और हड्डी गुड्डी हमारी तोड़ देते हैं। நாம விக்ன விநாசக் ஆகணும், நாம நிர்விக்னம் ஆகணும்னா நம்மளோட ஸ்திதி நல்லா இருக்கணும். அதுக்கு பாபா நேற்று என்ன சொன்னாங்க, பாபா மிலன்ல நேற்று பாபா என்ன சொன்னாங்க, விழக்கூடியவங்களை எழச் செய்யுங்கள். அப்பதான் பாபாவுக்கு அன்பு ஏற்படும். என்னோட குழந்தை எப்படி பாருங்க எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு அன்பு ஏற்படும். பியார் மிலா அப்படின்னு பாபாவுடைய அன்பு கிடைக்கும். விழக்கூடியவங்கள நல்ல வேலையா போச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி விடுறோம். அப்ப பாபா நம்மள பாக்குறாங்க. பாபாவுடைய அன்பை அனுபவம் செய்ய முடியுமா, பாபாவுடைய உதவியை அனுபவம் செய்ய முடியுமா? அப்ப விழக்கூடியவரை எழச் செய்யக்கூடியவராக, பாபாவுடைய அன்பை அனுபவம் செய்யக்கூடியவராக இருக்கணும், ஆசீர்வாதம் கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கணும். யாரோட சன்ஸ்கார் தடை ஏற்படுத்தக்கூடியதா இருக்கு, துக்கம் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு, நல்ல வேளை அந்த பார்ட்ஸ் அவங்க ப்ளே பண்றாங்க, நல்லா ப்ளே பண்றாங்க, அவங்களுடைய பார்ட்ஸ் அவங்க ப்ளே பண்றாங்க, நாம கரெக்டா இருக்கணும். அவங்கள பார்த்து நாம குறை கண்டுபிடிக்கிறது, அத இங்க அங்க சொல்றது, டைம் தாட்ஸ் வேஸ்ட் பண்றது, இது எல்லாமே ரைட் கிடையாது. और ये आपस में संस्कार क्यों आपस में विघ्न पैदा होते हैं, जिनके कुछ निगेटिव हिसाब है, तो निगेटिव हमारे विघ्न आएंगे। इसीलिए अगर आपस में कोई मुझे कोई तंग कर रहा है, मेरी कोई चुगली कर रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम निर्माण कर रहा है, ये मेरे पिछले जन्म के रहे हुए कर्मों के हिसाब है। इसीलिए इस व्यक्ति का कोई भी दोष नहीं है, वो निर्दोष है। ये समझ करके हमें क्या करना है, अपने मन को चुप रखना है और निगेटिव से बचना है, विघ्नों से बचना है, निर्विघ्न बनना है। நாம நிர்விக்னம் ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளோட மனது அமைதியாக இருக்க வேண்டும். நிர்விக்னம் ஆகணும்னா மனது அமைதியா இருக்கணும். தாட்ஸ் வேஸ்ட் ஆகுது, டைம் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னா எப்படி நிர்விக்னம் ஆக முடியும்? யாராவது அப்படி பார்ட் ப்ளே பண்றாங்க, தடை ஏற்படுத்துறாங்க, நல்ல வேளை என்னோட கர்ம கணக்க முடிக்கிறாங்க. எத்தனை ஜென்மா எடுத்திருக்கோம், எத்தனை ஜென்மா எடுத்திருக்கோம், எத்தனை கணக்கு இருக்கும், என்னோட கர்ம கணக்க முடிக்கிறாங்க. அப்ப என்ன சொல்லணும், மனதை அமைதியா வச்சுக்கணும், விக்ன விநாசக்கா இருக்கணும், நிர்விக்னமா இருக்கணும், பாபா சொல்ற மாதிரி சுப பாவனை தான் செய்யணும், அச்சல் அட்டோல் ஸ்திதி இருக்கணும். इसलिए इस कर्म, आज मैंने भी कभी राजा बन करके किसी को राजा से निकाल दिया होगा, मैंने कभी इसको पति बन करके तंग किया होगा, मैंने भी कभी इसको सास बन करके तंग किया होगा, मैंने भी इसका मित्र बन करके कभी धोखा दिया होगा। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर वर्तमान के मेरे जो प्रॉब्लम है, ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब है, इसलिए इस व्यक्ति का कोई दोषी नहीं। ऐसा समझ करके कुछ दिन तक हम शांत रहेंगे, दुआएं देंगे, तब हम ऐसे विघ्नों में भी, तो धीरे धीरे वो बदल जाएगा वो व्यक्ति। अगर हम दुआएं देंगे, शुभ भावना उस व्यक्ति के प्रति रखेंगे, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति बदल जाएगा और हम विघ्न में निर्विघ्न। नहीं तो हम कभी बड़ों को भी सुनाते हैं, आपस में खुद ही कभी गुस्सा कर लेते हैं। इसलिए विघ्न के परिणाम तो अलग हो जाते हैं। इसलिए हमें निर्विघ्न रहना है, शांत रहना है, सहन करना शुरू में कड़वा है, इसके परिणाम अच्छे आते हैं। नहीं तो कईयों को हमें ईगो आता है, हाँ मुझे ही सहन करना है, मैं ही झुकूं। ईगो वाला कभी झुक नहीं सकता, फिर हाँ, फिर आपस में टूट जाते हैं। फिर वो एक बार अगर आपस के विघ्नों में, संस्कारों में टकराव होकर के हमारी भावना बिगड़ गई,
वृत्ति में चला गया, इसलिए है ही ऐसा, स्वप्न में भी उसको दुआएं नहीं देंगे। और जो दुआएं नहीं देता शुभ, एक व्यक्ति के प्रति भी हम दुआएं नहीं देंगे, हमारे दिल में बाबा नहीं बैठेगा। நம்ம விக்ன விநாசகா இருக்கணும், நிர்விக்னமா இருக்கணும். அப்போ சுப பாவனை, எல்லாருக்காகவும் எல்லாருக்காகவும் ஹரேக்குக்கோ எல்லாருக்காகவும் சுபபாவனை செய்யக்கூடியவரா இருக்கணும். ஒருத்தர் அப்படி இருக்காங்க, தடை ஏற்படுத்துறாங்க, நிந்தனை பண்றாங்க, நல்லது என்னோட கணக்க முடிக்கிறாங்க, எத்தனை ஜென்மா எடுத்திருக்கோம் நம்மளோட பழைய கணக்க, நம்மளோட கணக்க முடிக்கிறாங்க, நம்மளோட கெட்ட கர்மத்தை முடிக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு அமைதியாக இருங்கள், ஆசீர்வாதம் கொடுங்கள். அமைதியா இருங்க, ஆசீர்வாதம் கொடுங்க. அப்ப கணக்கு முடிஞ்சிரும். ஈகோல வரக்கூடாது. நான் எப்படி இவங்களுக்கு, இவங்க எப்படி எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஈகோல வரக்கூடாது. ஒருவேளை ஆசீர்வாதம் கொடுக்கல, அவங்க மேல வெறுப்பு இருக்கு. ஒருவேளை ஆசீர்வாதம் கொடுக்கல, அவங்க மேல வெறுப்பு இருக்குன்னா எப்படி கணக்கு முடியும்? அதுவும் ரைட்டு கிடையாது. பாபா திலாராம் பாபா தில்மே திலாராம் பாபா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா சுப பாவனை உடையவரா தான் இருக்கணும். और जितना हम विघ्नों का चिंतन करेंगे, उतना हमें जीवन में टेंशन पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, उतना हमें कोई शरीर की बीमारी भी होने की संभावना है। इसीलिए आजकल लोगों को डिप्रेशन, आजकल एक बार अगर ये हो गया तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसलिए हमें उन बातों को हल्के लेना है, मेरा कर्मों का है, या फिर उसके बातों को, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो, बुराई को भी अच्छाई बना लो। तो इस तरह से हमें आपस के विघ्नों में निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करना जरूरी है। इससे हमारा संगम का टाइम बच जाएगा, आपस में सब ठीक रहेंगे। आज एक व्यक्ति को हम नहीं बदलते, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, कहते ये यहाँ चला जा रहा है, मेरा बहुत अच्छा पुरुषार्थ। अब कुछ समय के बाद दूसरा कोई आया, कुछ समय के बाद उसकी भी वही बातें दिखाई पड़ेगी, फिर कहेगी ये भी ऐसा है, चलो उसको छोड़ा, फिर दूसरा भी। इसलिए अगर आप घर में या ऑफिस में जिसके साथ निर्विघ्न रहते हैं, आप दुनिया में कहीं भी जाओ, आप निर्विघ्न ही रहेंगे। इसलिए जो हमको बाबा ने जो हमारे आसपास में जिनको दिया है, आपस के संस्कारों में हमें मिलकर रहना है, निर्विघ्न होकर रहना है। तो कहीं भी जाएंगे आप निर्विघ्न होकर के रहेंगे। நாம நிர்விঘ்னமாகணும். நம்மளோட டைம் எப்படி இருக்கு, நம்மளோட தாட்ஸ் எப்படி இருக்கு, நாம விக்ன விநாசகா இருக்கணும், நாம புருஷார்த்தியா இருக்கிறோம். அப்போ நமக்கு தடை ஏற்படுத்துறாங்க, வீட்லயோ ஆபீஸ்லயோ எங்கேயோ தடை ஏற்படுத்துறாங்க, நமக்கு பாசிட்டிவ் சங்கல்பா தான் இருக்கணும். நாம நெகட்டிவ் சங்கல்பா பண்றோம், நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்றோம்னா விக்ன விநாசக், புருஷார்த்தி, நிர்விக்னம் இதெல்லாம் எப்படி சொல்ல முடியும்? நாம சுபபாவனை உடையவரா தான் இருக்கணும். நம்மளோட கணக்கு முடியுது அப்படின்னு நினைக்கணும். அவங்களுக்கும் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கக்கூடியவங்களா இருக்கணும். நம்மளோட மனது அமைதியாக இருக்க வேண்டும். குழப்பத்துல வந்து 4 பேர்கிட்ட சொல்றோம் அப்படி கூட இருக்கக்கூடாது. நாம அமைதியானவரா இருக்கணும். நம்மளோட கணக்க முடிக்கக்கூடிய விக்ன விநாசக்காக இருக்க வேண்டும். दूसरा विघ्न है, इसका तो विस्तार बहुत है, लेकिन हम शॉर्ट में पूरा करेंगे। दूसरा विघ्न है हमारे पुराने संस्कार का विघ्न। पुराने संस्कारों में भी हमें क्या करना है, निर्विघ्न रहना है। तो पुराने संस्कार के द्वारा विघ्न कब आता है? जब हमारा ज्ञान योग कम रहता है, जब हम ज्ञान योग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, स्टडी नहीं करते, तब जाकर के कभी कभी हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं। बाबा कहता है पुराने संस्कार तो आपके पुराने नहीं है। कल उसकी बाबा ने डेफिनेशन बहुत अच्छा दिया है। बाबा ने कहा कि आपके आदि संस्कार, आदि मतलब सतयुग आने से पूर्व, फिर आदि अनादि संस्कार मतलब सतयुग के संस्कार, अनादि संस्कार अर्थात परम धाम में जो संस्कार थे, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये हमारे अनादि संस्कार ये है, पुराने संस्कार ये है। और आदि संस्कार भी कितने देवता स्वरूप वाले। और उसके बाद फिर ब्राह्मण के संस्कार, ये ब्राह्मण के संस्कार, ये अभी ये वर्तमान के संस्कार। तो हमारे पुराने संस्कार तो ये है, लेकिन ये है मध्य के संस्कार जो हमें क्रोध में आते हैं, लोभ लालच में आते हैं, गुस्सा करते हैं। ये मेरे पुराने संस्कार नहीं है। पुराने संस्कार मेरे जो आदि वाले संस्कार, अनादि वाले संस्कार, ब्राह्मण संस्कार, ये हमारे। इसलिए हमें कभी कभी कहते हैं ये मेरे संस्कार है, मेरे समझ करके उसको क्या करते हैं, सहयोग देते, तो ये निकलते नहीं। इसलिए अब मेरे पुराने संस्कार को मुझे जागृत करना है। जितना उस पुराने संस्कार के स्वरूप में रहेंगे, शांत स्वरूप में रहेंगे, आनंद स्वरूप में रहेंगे,
तब ये जो बीच के संस्कार आए वो बदल जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। நம்மளோட சன்ஸ்கார் ஆதி சன்ஸ்காரா இருக்கணும், அனாதி சன்ஸ்காரா இருக்கணும். ये ஆதி दूसरा दूसरा சன்ஸ்கார் पॉइंट है, ये दूसरा ओके। पॉइंट है, दूसरा विघन। हाँ, फर्स्ट विघ्न मनुष्यों का। वो उनको जिन लोगों के अच्छा बीच में पाठ रहते हैं उनका विघ्न, और फिर हाँ, पुराने संस्कार का विघ्न। சன்ஸ்காரோக்கி விக்ன. இந்த பழைய சன்ஸ்கார் மூலமாக விக்னம் தடை ஏற்படுது அப்படின்னாலே, ஆதி சன்ஸ்கார் இல்ல, அனாதி சன்ஸ்கார் இல்ல அப்படின்னாலே பழைய சன்ஸ்கார் மூலமாக தடை ஏற்படுது. அது எதனால? ஞானம் யோகத்தால். மொத்தம் 4 சன்ஸ்கார் சொன்னாங்க. நமக்கு 4 விக்னம் ஏற்படுது, 4ன் மீது நாம வெற்றி அடையணும் அப்படி சொன்னாங்க இல்லையா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஏதாவது மனிதர்கள் தடை ஏற்படுத்துறாங்கன்னா நல்லதுன்னு நினைச்சிருங்க, கணக்க முடிக்கிறாங்கன்னு நினைச்சிருங்க, ஆசீர்வாதம் கொடுங்க, இப்படி எல்லாம் நமக்கு பாயிண்ட் கொடுத்தாங்க. அடுத்து சன்ஸ்கார் தடை ஏற்படுத்துது. நெக்ஸ்ட் சன்ஸ்கார் தடை ஏற்படுத்துது அப்படின்னா ஒண்ணு ஆதி சன்ஸ்காரா இருக்கணும், அனாதி சன்ஸ்காரா இருக்கணும். அப்படி இல்லைனாலே தடை தானே. அப்போ அதற்கு என்ன பண்ணணும்? ஞானம் யோகம். எப்போ ஞானம் யோகம் இருக்கோ அப்ப ஆதி சன்ஸ்கார் இருக்கும், அனாதி சன்ஸ்கார் இருக்கும். அப்ப எந்த தடை ஏற்படாது. जब हम अपने अनादि पुराने संस्कारों को यूज नहीं करते, सुख शांति की अनुभूति नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं? ये बीच के माये के संस्कार, इसको माये के संस्कार कहेंगे। ये आते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, तुमको मैं सुख देता हूं, और एक क्षणिक सुख लेकर के हम क्या करते हैं, और ये अपने आप को पतन की तरफ लेके जाते हैं, ये हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने पुराने संस्कार के अनुसार चलना है। जो हमारे कहते हैं ना, पूर्वज पूर्वज के, तो हमारे पुराने संस्कार के जितने स्वरूप बन के रहेंगे, ये बीच के संस्कार नहीं आएंगे। பழைய சன்ஸ்கார் எமர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னாலே ஆதி சன்ஸ்கார் அனாதி சன்ஸ்கார் இல்ல, ஞானம் யோகம் இல்ல. அப்ப அது கூட தடை ஏற்படுத்துது இல்லையா? அப்ப நாம ஞானம் யோகத்தின் மூலமாக நம்முடைய ஆதி சன்ஸ்காரத்தை தாரணை செய்ய வேண்டும், அனாதி சன்ஸ்காரத்தை ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். ஞானம் யோகம் கொண்டு வந்துட்டா நம்முடைய சன்ஸ்கார் மாறிவிடும். इसलिए रोज हमें अपने अनादि जो संस्कार है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो आत्मा की ओरिजिनल संस्कार 7 है, उस 7 स्वरूपों में जितना टिकेंगे, शांत स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, उतना हमें आत्मा को सच्चा सुख मिलता है, आत्मा स्वरूप में टिक सकते हैं। तो ये मध्य के संस्कार फिर हम टच भी नहीं करेंगे। நாம தினம் தினம் சாந்த சொரூப ஆத்மா, சாந்த சொரூப ஆத்மா, அன்பு சொரூப ஆத்மா, சக்தி சொரூப ஆத்மா, சுக சொரூப ஆத்மா அப்படி நாம இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் நமக்கு பழைய சன்ஸ்கார் எமர்ஜ் ஆகாது. ஆதி சன்ஸ்கார் அனாதி சன்ஸ்காரத்தை நாம எமர்ஜ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணா, தாரணை செய்தால் நமக்கு பழைய சன்ஸ்கார் தடையாகாது. क्योंकि संस्कार के वश होने से जो हमने कुछ किया हुआ है सब क्या होता है, जीरो बन जाता है, उसे 1 का 100 गुना बढ़ जाता है। जब पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं, हम इंद्रियों के भी वश हो गए, तो हम भविष्य में राजा नहीं बनेंगे। इसलिए मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, क्योंकि वो संस्कार के वश नहीं होती थी। यह है काली का रूप, यह है असुरी संगारणी का रूप। हम असुरी संगारणी करके हमें जो बीच के जो संस्कार है, तो उसको असुरों को खत्म करना है, और अपने ओरिजिनल संस्कार को क्या करना है, धारण करके चलना है। यह है राक्षसों का वध करना। और यही संस्कारों ने आज हमें दुखी बनाया, परेशान बनाया, हमारी मन की शांति को बंद किया। जो संस्कार के वश हो जाता है वो योगी नहीं बन सकता, उसका योग नहीं लगेगा, हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता, उसकी चेहरे पर खुशी गायब हो जाती है। इसलिए अब हमें इस पुराने संस्कार को, जो बीच के माये के संस्कार है, उसके अंदर निर्विघ्न बनने के लिए अपने ओरिजिनल संस्कार को याद करते रहना है। ஒரிஜினல் சன்ஸ்காரத்தை தாரணை செய்ய வேண்டும். ஞானம் யோகத்தின் மூலமாக ஆதி சன்ஸ்கார், தேவதா சன்ஸ்கார். ஞானம் யோகத்தின் மூலமாக அனாதி சன்ஸ்கார், சாந்த சுரூப ஆத்மா, சக்தி சுரூப ஆத்மா, சுக சுரூப ஆத்மா இப்படி தாரணை செய்ய வேண்டும். இந்திரிய ஜீத் ஆக வேண்டும், கர்ம இந்திரிய ஜீத் ஆக வேண்டும். மம்மா பாபா
தவறு செய்ய மாட்டாங்க. ஒரு முறை செய்துட்டா அடுத்து செய்யவே மாட்டாங்க. அப்படி கவனமாக இருந்தாங்க. நேத்து கூட பாபா மிலன்லயும் பாபா சொன்னாங்க, பாபா எதற்கும் கஷ்டப்பட்டதில்ல, முசிக்கல் கஷ்டப்பட்டதில்ல, கவனம் கொடுத்தாங்க, அட்டென்ஷன் கொடுத்தாங்க, அப்படிதான் சொன்னாங்க இல்லையா? அப்படி பாபா மம்மா ஒரு முறை செய்த தவறை மறுமுறை செய்யவே இல்லை, அப்படி கவனம் கொடுத்தாங்க. அப்ப சன்ஸ்கார் ஆதி சன்ஸ்கார், சன்ஸ்கார் அனாதி சன்ஸ்கார், சுகம் இருக்கும் துக்கம் இருக்காது. அப்படி யோகியாக இருக்க வேண்டும், கர்மேந்திரிய ஜீத்தாக இருக்க வேண்டும், விக்ன விநாசக்காக இருக்க வேண்டும். तो हमें जो बाबा ने ब्राह्मण बन करके ब्राह्मणों के लिए जो नियम मर्यादा दी है, उस नियम मर्यादा अनुसार हम नेचुरल जब चलेंगे तो ये जो बीच के संस्कार है वो संस्कार नहीं आएंगे। क्योंकि बाबा ने हमें जो सवेरे अमृत वेला उठना है, रोज नहा धो करके मुरली क्लास के पहले आकर के योग करना है, उसके बाद रोज की मुरली सुननी है, शुद्ध भोजन खाना है, पवित्र रहना है, ये जो भी आंखों से क्या देखना है, तो जितना ये हमें नियम मर्यादा को फॉलो करते हैं, ये बीच के संस्कार नहीं आएंगे। वो तब आते हैं जब हम ब्राह्मण जीवन की नियम मर्यादा छोड़ देते हैं, तब जाकर के संस्कार आते हैं और ये हम हमें विघ्नों में लेके जाते हैं। இப்படி பாருங்க, நம்மளோட சன்ஸ்கார் ஆதி சன்ஸ்காரா இருக்கணும், அனாதி சன்ஸ்காரா இருக்கணும், கர்மேந்திரிய ஜீத், மம்மா பாபா போல தவறு செய்யாமல் இருக்கணும், கவனமா இருக்கணும், நியமப்படி இருக்க வேண்டும், மரியாதைப்படி இருக்க வேண்டும். பாபா கொடுத்த நியமப்படி, மரியாதைப்படி. பாபா என்ன ஃபுட்டு பிரம்மா போஜன் சாப்பிட சொல்றாங்க, பாபா என்ன சாப்பாடு நம்மள சாப்பிட சொல்றாங்க, பாபா நம்ம எப்படி திருஷ்டியோடு விருத்தியோடு இருக்க சொல்றாங்க, அப்படி நியமப்படி மரியாதைப்படி இருந்தால், கர்மேந்திரிய ஜீத்தாக இருந்தால், நம்மோட சன்ஸ்கார் ஆதி சன்ஸ்கார் அனாதி சன்ஸ்கார். அப்படி இல்ல பழைய சன்ஸ்கார் எமர்ஜ் ஆகுதுன்னா, நாம தாரணை செய்யறதுல கரெக்டா இருக்கணும், நியமப்படி மரியாதைப்படி கரெக்டாக இருந்தால் நாம பழைய சன்ஸ்கார் எமர்ஜ் ஆகாது. जैसे कोई चोर कोई घर में चोरी करने के लिए आता है तो पहले क्या करता है, वो लाइट को काट देता है, टेलीफोन को काट देता है, उसके बाद डाका डालता है, लूटता है। इसी तरह माया भी क्या करते हैं, किस रूप से आते हैं, तो हम क्या जो हमारे से मुरली हम सुनते हैं उसका आलस अलबेलापन आएगा, योग लगाते उससे आलस अलबेलापन आएगा, लाइट काट दी नियम मर्यादा टूट गई, तब जाकर के अटैक करते। इसलिए जो ब्राह्मणों के लिए जो हमारे नियम संयम है उसको अंत तक करते रहना, तब ये संस्कार हमारे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये नेचुरल अच्छे पुराने जो हमारे सत्यु के संस्कार है, आदि अनादि संस्कार है, वो जागृत होंगे, ये बीच के संस्कार खत्म होंगे। और अगर हम एक ब्राह्मण जीवन में भी निर्विघ्न रहेंगे तो पूरा 84 जन्म हमारा निर्विघ्न चलेगा। इसलिए हमें जो बाबा ने नियम मर्यादा दिए उस प्रमाण चल करके संस्कार के विघ्नों में निर्विघ्न बनना है। இப்போ நாம நிர்விக்னம் விக்ன விநாசக் ஆயிட்டோம்னா, நாம இந்த பிராமண ஜென்மத்துல விக்ன விநாசக் நிர்விக்னம் ஆயிட்டோம்னா, நம்மளுடைய கல்பம் எப்படி இருக்கும், நம்மளுடைய ஜென்மம் எப்படி இருக்கும்? எப்படி பாருங்க, ஒரு திருடன் வர்றாங்க, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் லைட்டை கட் பண்ணிடுறாங்க. ஒரு திருடன் வர்றாங்க, திருட வர்றாங்க, லைட்டை கட் பண்ணிடுறாங்க, போனை கட் பண்ணிடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய வேலை என்னவோ அதை பாக்குறாங்க. இடையில குறுக்க வர்றவங்கள அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அதே போல பழைய சன்ஸ்கார் வருது அப்படின்னா, நாம ஆதி சன்ஸ்காரத்தான் தாரணை செய்யணும், அனாதி சன்ஸ்காரத்தான் தாரணை செய்யணும். பாபா சொல்ற நியமப்படி மரியாதைப்படி நடக்கணும், யோகா பண்ணணும். அப்ப நம்மளுடைய யோகா கூட எப்படி இருக்கும், யோகியா இருக்கணும் அப்படின்னா, நாம கர்மேந்திரிய ஜீத்தா இருக்கணும். இந்த பழைய சன்ஸ்கார் வரக்கூடாதுன்னா நம்மளுடைய நியம மரியாதைப்படி கரெக்டாக நடக்க வேண்டும். அதற்கு ஞானம் யோகம் அவசியமானது. जितना हम आत्मा अभिमानी स्थिति में रहते हैं, ओरिजिनल आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, ये जो बीच के माया के संस्कार नहीं आएंगे। क्योंकि आत्मिक स्वरूप में रहते से हमें सच्चा सुख मिलता है। जैसे कोई जलेबी खाता है उसको मुरमुरा फीका लगता है, इसी तरह हमारे संस्कारों के निर्विघ्न रहने के लिए क्या करना है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। और आत्मिक स्थिति से हमारे हमारी पढ़ाई से, शुद्ध भोजन से, पवित्रता की धारणा से, जो ब्राह्मणों के लिए जो कायदे कानून बने वो करेंगे, आत्मिक स्थिति बनेगी। जब आत्मिक स्थिति बनेंगे तो हमें कोई भी पूरा संस्कार हमारे पर वार नहीं करेंगे, उसमें निर्विघ्न रहेगी।
நாம நிர்விக்னமா இருக்கணும், விக்ன விநாசகா இருக்கணும்னா ஞானம், யோகம், ஆத்ம அபிமானி நிலை. ஆத்ம அபிமானி நிலை, நியமப்படி நடக்கணும், பாபாவுடைய மரியாதைப்படி நடக்கணும். பாபா பிரம்மா போஜன் கொடுக்குறாங்க, அப்போ பாபாவுடைய பிரம்மா போஜன் சாப்பிடணும். நாம பாபா நினைவுல சமைச்சு பாபாக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். ஒரு ஜிலேபி சாப்பிடுறோம், அப்ப நம்மளுடைய வாய்ப்புட எப்படி இருக்கும்? அப்ப நம்ம கரெக்டா நடக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அனுபவம் விக்ன விநாசகா நிர்விக்னமா கரெக்டா இருக்கும். அப்படி இல்ல, ஆத்மா அபிமானியா இல்ல, ஞானம் யோகம் இல்லைன்னா தடை வரும் இல்லையா? அப்ப அதை ஜெயிக்கிறதுக்கு ஞானம் யோகத்தின் மூலமாக சன்ஸ்கார் மீது வெற்றி அடைய வேண்டும். तीसरा है हमारे कर्मेंद्र के द्वारा आने वाला विघ्न। कर्मेंद्र के द्वारा आने वाला विघ्नों में निर्विघ्न बनना है, क्योंकि ये भी सबसे खतरनाक विघ्न है। चलो प्रकृति का तो ये संस्कार को तो ये कर देंगे, कोई आपस में ठीक नहीं, लेकिन कभी कभी हमारी कर्मेंद्रिय हमको धोखा देते। तो कर्मेंद्रिय के विघ्नों में निर्विघ्न बनना है, तो रोज हमें कर्मेंद्रिय का मालिक बन करके क्या करना है, दरबार लगाना है, और हर कर्मेंद्रिय की चेकिंग करनी है। और जो कर्मेंद्रियां हमारा कहना नहीं मानती उसको सजा देना है, शिक्षा देना है। और तब जाकर के सारी का हम क्या करते हैं, देखते ही नहीं कि आंखें क्या देख रहे, कान क्या सुन रहे, मुंह क्या बोलता है, मन क्या सोचता है, उसके तरफ देखते ही नहीं है। और कभी अचानक विघ्न आए तो भाई हम सोचे ऐसा क्यों हो गया। ये सब का कारण है इंद्रिया माया से मिल जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा रोज अपना दरबार लगाते थे, इसी तरह अगर रोज आप कर्मेंद्र का दरबार लगाएंगे तो इंद्रियों के विघ्नों में निर्विघ्न रह सकेंगे। நாம மூன்றாவது நெக்ஸ்ட் தடை மீது வெற்றி அடையணும். ஃபர்ஸ்ட் தடை மீது வெற்றி அடையணும்னா மனிதர்கள் நமக்கு என்ன தடை ஏற்படுத்தினாலும் சுபபாவனை சுபபாவனை. நெக்ஸ்ட் தடை மீது வெற்றி அடையணும்னா ஞானம் யோகம், நியமப்படி நடத்தல், மரியாதைப்படி நடத்தல். பாபா ஆத்ம அபிமானியா இருக்க சொல்றாங்க, பாபாவுடைய நியம் மரியாதை. மூன்றாவது விக்னம், இதன் மீது வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா நாம கர்ம இந்திரியங்களின் மாலிக், கர்மேந்திரிய ஜீத், கர்ம இந்திரியங்களின் மாலிக், தர்பார், கர்ம இந்திரியங்களோட தர்பார் கூட்டணும். என்னோட கண்ணு ஏமாற்றம் கொடுக்கல, என்னோட கர்ம இந்திரியங்கள் ஏமாற்றம் கொடுக்கல. எப்படி பிரம்ம பாபா நைட் நைட்டு கர்மேந்திரியங்களின் தர்பார் செக் பண்ணிட்டு சார்ட் எழுதணும் அப்படி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க, அனுபவம் சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல நாம பிரம்ம பாபாவை ஃபாலோ பண்ணணும். கர்ம இந்திரியங்களின் தர்பார், கர்ம இந்திரியங்களை செக் பண்ணணும், படிப்பினை கொடுக்கணும், இப்படிதான் பார்க்கணும், இப்படிதான் பேசணும், இப்படி இருக்கணும்னு நாம படிப்பினை கொடுக்க வேண்டும். அப்பதான் நாம நிர்விघ्னம் ஆக முடியும். रोज हम रात को सोने से पहले भी दरबार लगाएं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया था। और सवेरे उठते ही हमें क्या करना है, अमृत वेला के बाद सभी इंद्रियों को आज हमारा युद्ध का क्या क्या प्लान है। कोई भी अगर कर्मेंद्र धोखा देगी हम उसको सजा देंगे। तो इसीलिए मालिक बन करके, मैं आत्मा राजा हूं, कर्मेंद्र का मालिक हूं, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। इसका अभ्यास करके जितना रोज इंद्रियों का दरबार लगाएंगे, सजा देंगे, तो कर्मेंद्रिय कभी भी हमको विघ्न नहीं डालेंगे। और जितना स्वराज्य अधिकारी स्थिति है विघ्न विनाशक बन सकेंगे। எவ்வளவு சுயராஜ்ய அதிகாரி ஸ்திதியில இருக்கிறோமோ, நான் சுயராஜ்ய அதிகாரி கர்மேந்திரிய ஜீத், கர்மேந்திரிய மாலிக், எவ்வளவு சுயராஜ்ய அதிகாரி ஸ்திதியில இருக்கிறோமோ, ஆத்ம அபிமானியா இருக்கிறோமோ, அப்ப நிர்விக்னம் ஆயிடலாம். பிரம்ம பாபா போல கர்மேந்திரிய ஜீத்தா இருக்கணும், கர்மேந்திரிய மாலிக்கா இருக்கணும், ஆத்ம அபிமானி நிலையில இருக்கணும். நிர்விக்னமா இருக்கிறதுக்கு சுயராஜ்ய அதிகாரி ஸ்திதியில் இருக்க வேண்டும். वो दरबार कैसे लगाना है, क्या करना है, उसके बारे में शायद एक बार हमने विस्तार में क्लास भी किया था। तो भी अगर विघ्न डालते हैं तो इसका मतलब आप दरबार लगाते नहीं होगे और रोज शिक्षा सजा देते नहीं होगे। इसलिए कर्मेंद्र आपको धोखा देगी। इसलिए और कर्मेंद्र से प्यार करना, हमें आंखों से प्यार करो, ये आंखें तुम कितनी अच्छी हो, तुमने बाबा को देखा हुआ है, मुझे बहुत आंखें मिली, ये कान से प्यार करो। और जब ये इंद्रिय सहयोगी बनेगी इसमें आप निर्विघ्न रहेगी। और जितना ये निर्विघ्न उतनी आपकी शक्तिशाली स्थिति बनेगी, पावरफुल स्थिति बनेगी। எப்படி பாருங்க, நமக்கு கண்கள் கிடைச்சிருக்கு, கர்ம இந்திரியங்கள்ல கண்கள் கிடைச்சிருக்கு, பாபா மிலன் பண்றோம், பாபாவை பாக்குறோம். காது இருக்கு, பாபா என்ன சொல்றாங்களோ கேக்குறோம். நாம பாபாவோட மகிமை பாடுறோம், பாபாவோட மகிமை எழுதுறோம். அப்போ கர்ம இந்திரியங்களை நாம அன்பா அத நடத்துறோம்.
அதே நேரத்துல கர்ம இந்திரியங்களின் மாலிக் ஆயிற்று. கரெக்டா நியமப்படி மரியாதைப்படி தான் இருக்கணும். அப்படி கர்ம இந்திரியங்களின் மாலிக்காகவும் இருக்கணும். சுயராஜ்ய அதிகாரி ஸ்திதியில் இருக்க வேண்டும். चौथा विघ्न है लास्ट का, हमारे कभी कभी बीमारी हो जाती है, कोई हमें प्रकृति धोखा देती है, ये विघ्न। और ये विघ्न भी सबसे खतरनाक विघ्न है। बीमारी का विघ्न, अगर कोई बीमारी आती है, प्रकृति हमें धोखा देती है, कभी कभी इविल सोल्स भी हमें विघ्न डालते हैं, ये इसमें भी हमें निर्विघ्न बनना है। तो इसको विघ्न निर्विघ्न बनने के लिए प्रकृति हमें धोखा क्यों डालती है? क्योंकि प्रकृति के साथ भी हमारा हिसाब किताब है। இயற்கை கூட ஏன் நமக்கு ஏமாற்றம் கொடுக்குது அப்படின்னா அதன் கூடும் நமக்கு கணக்கு இருக்கு. அதனாலதான். அப்போ நாம ஈவில் சோல் இருக்கு, இயற்கை இருக்கு, ஹெல்த் டல்லா இருக்கு, இந்த விஷயங்கள் அனைத்தின் மீதும் வெற்றி அடைந்து நிர்விக்னம், விக்ன விநாசக் அப்படி ஆக வேண்டும். तो वास्तव में जब हम धरती पर आए, परम धाम से आए, तो प्रकृति ने हमें को कितना सहयोग दिया, कितने अच्छे अच्छे शरीर दिया। अभी कलयुग के अंतिम समय में भी देखो हमारा कितना सुंदर शरीर है। प्रकृति हमें कितना खाने पीने की चीजें देते हैं। अगर थोड़ा सा समय के लिए अगर श्वास न में ऑक्सीजन न मिलेगी तो व्यक्ति शरीर जिंदा नहीं रह सकता। ऑक्सीजन के लिए कोई प्रकृति पैसा नहीं लेते हमको, हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, खाने पीने की चीज मिल रहे है। तो कलयुग के अंतिम समय में भी आज प्रकृति इतना सहयोग दे रहे हैं, तो सतयुग में हमको कितना क्या क्या दिया होगा, कितने अच्छे अच्छे शरीर दिया होगा, कितना अच्छा अच्छा भोजन दिया होगा। लेकिन हमने क्या किया? प्रकृति का दुरुपयोग किया। आंखों से गलत देख लिया, कान से गलत सुन लिया, मुख से गलत बोल दिया, मन से गलत सोच लिया। और इसीलिए प्रकृति अंदर गुस्से में है, कहते मैं तेरे को तेरा बदला लेना है मेरे को, मैं तेरा बदला लेके छोड़ूंगी। और इसीलिए कभी बीमारी के रूप में आती है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम के रूप में आते हैं। ये प्रकृति का विघ्न क्यों आता है? क्योंकि हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया है। इसीलिए अब हमें इस प्रकृति के विघ्नों में निर्विघ्न बनने के लिए प्रकृति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है। நாம இந்த லாஸ்ட் ஜென்மத்துல கூட பாருங்களேன் எப்படி இருக்கிறோம். பிரம்ம பாபா, எனக்கு எப்பவுமே இந்த பாயிண்ட் பிடிக்கும். பிரம்ம चौथा பாபா विघ्न, चौथा विघ्न। சௌத்தா, இது 4வது தடை. இந்த தடை மீது வெற்றி அடையணும், விக்ன விநாசக் ஆகணும். இந்த 4வது தடை மீது வெற்றி அடைய என்ன சொல்றாங்கன்னா, எப்படி பிரம்ம प्रकृति பாபா का विघ्न। ஆஹ் பிரகிருதி இயற்கைக்கா விக்ன நேச்சுரல்கா எப்படி பாருங்க, பிரம்ம பாபா இருக்காங்க. பிரம்ம பாபாவை நம்ம 84வது ஜென்மத்துல பாக்குறோம். எப்படி பாபா மூலமாக சிவ பாபாவை அனுபவம் பண்ணிடுறோம்ல. நேத்து கூட நம்ம பாபா மிலன் பண்ணும்போது அவங்க சரீரத்தின் மூலமாக, ஆனால் பாபா தாதி எதுவுமே தோணாது. பாபா மிலன், பாபா மிலன், பாபா பாக்குறாங்க, பாபா திருஷ்டி கொடுக்குறாங்க, அப்படி அனுபவம் பண்ண வைக்கிறாங்க இல்லையா. அப்ப இந்த லாஸ்ட் ஜென்மத்துல கூட சுந்தர் சரீரம் கொடுத்திருக்கு இயற்கை. அப்போ நமக்கு காற்று, நிலம், நீர், ஆகாயம், நெருப்பு, இந்த இயற்கை இத்தனை ஜென்மங்களா எத்தனை எத்தனை உதவி செய்யுது. நாம அதற்கு என்ன உதவி செய்யறோம்? நாம பிரகிருதி ஜீதா இருக்கணும், கரெக்டா இருக்கணும் நியமப்படி திருஷ்டி விருத்தியில. இல்ல மாத்தி மாத்தி நினைக்கிறோம், மாத்தி மாத்தி பேசுறோம், மாற்றி பார்க்கிறோம் அப்படின்னா அதற்கான பலன் ஹெல்த் முடியாம போயிடுது. ஆனால் நாம கரெக்டா நியமப்படி விருத்தி திருஷ்டி எல்லாமே கரெக்டா இருக்குன்னா நிர்விக்னம், விக்ன விநாசக், பிரகிருதி ஜீத் அப்படி ஆக வேண்டும். तो प्रकृति के विघ्नों में हमें निर्विघ्न बनना है। तो प्रकृति ने हमें सतयुग में भी इतना अच्छा भोजन दिया, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में भी आज कितनी मदद करें। लेकिन द्वापर के बाद हमने क्या किया? इस प्रकृति का दुरुपयोग किया है, कान का दुरुपयोग, मुख का दुरुपयोग। इसीलिए प्रकृति को गुस्सा है। इसीलिए हमें प्रकृति हमें कोई विघ्न ना डाले, कोई बीमारी ना आ जाए, इसके लिए हम करें क्या? जैसे कोई व्यक्ति भूले करता है, अगर वो जाकर के उसे क्षमा याचना करता है, नहीं नहीं गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, तो भूलों को 100 गलती भी की, कोई माफी मांगते तो हम माफ करते हैं। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है? प्रकृति के 5 तत्वों को सामने इमर्ज करो।
इमर्ज करके उनसे माफी मांगो। हे प्रकृति, आपका कितना धन्यवाद। आपने मुझे तो लास्ट जन्म में भी इतना अच्छा अच्छा भोजन दे रहे, इतना अच्छा अच्छा शरीर दे रहे, इतने अच्छी आंखें दी, कान दिया। मैं आपके कारण इस सृष्टि पर 84 जन्म कितना अच्छा रह रहा हूं। तो लेकिन मैंने देहाभिमान वश होकर के, कोई ना कोई गलती के वश होकर के आपका दुरुपयोग किया। मैंने क्या किया? कान का दुरुपयोग किया। हे प्रकृति, आज से मुझे माफ करना। आज से मैं कभी भी आपका दुरुपयोग नहीं करूंगा, और ही आपके कारोबार में, आपको परिवर्तन करने में मैं सहयोगी बनूंगा। तो प्रकृति को रोज हमें अमृत वेले के बाद थोड़ा सा उनसे प्रकृति के 5 तत्वों को माफी मांगेंगे, तो प्रकृति का हमें सहज, हमें बॉडी से अलग करना जाने का चांस देगी। इससे हमें कोई भी प्रकार की विघ्न नहीं आएंगे। நாம விக்ன விநாசகாகணும் நிர்விঘ்னமாகணும். பாருங்க, இந்த 84வது ஜென்மத்துல கூட சரீரம் எப்படி இருக்கு? அப்போ இத்தனை ஜென்மமா இயற்கை நமக்கு எப்படிப்பட்ட சரீரம் கிடைச்சிருக்கு? இந்த 84 ஜென்மத்துல எப்படி நம்ம ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம்? அப்ப 84 ஜென்மமா எத்தனை நமக்கு ஃபுட் இயற்கையின் மூலமாக நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு, அந்த சுவாசம் இருக்கு இல்லையா? கன்ஃபார்ம் சுவாசம் இருக்கிற வரையில் தான் ஜீவன் உயிர் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. நீர், தண்ணீர் கூட நமக்கு எத்தனை உதவியா இருக்கு. பழங்கள், ஃப்ரூட் இப்படி எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப நாம கர்மேந்திரிய ஜீத் ஆகணும்னா அமிர்த வேலை. நாம இயற்கைட்ட மாஃப் கரோ, என்ன மன்னிச்சிடுங்க. நானு எப்படி பாருங்க, தேக அபிமானத்துல வந்து தவறு செய்துட்டேன், என்ன மன்னிச்சிரு அப்படின்னு நாம கேட்கணும். எத்தனை உதவி செய்யற, அப்ப நீ ரொம்ப தேங்க்ஸ், நன்றி சொல்லணும். அதுக்கு அத்தனை நன்றி சொல்லணும், தேங்க்ஸ், நன்றி சொல்லணும். மன்னிப்பு கேட்கணும். தேக அபிமானத்துல வந்து கர்மா செய்யறதுக்காக மாஃப் கரோ, மன்னிப்பு கேட்கணும். அது அத்தனை உதவி செய்யுது இல்லையா இயற்கை? அப்ப தேங்க்ஸ் பண்ணணும், நன்றி சொல்லணும். நாம ஆத்ம அபிமானியாக இருக்க வேண்டும். இன்றிலிருந்து நான் எந்த தவறும் செய்ய மாட்டேன் அப்படி சொல்லணும். அப்போ நாம இயற்கைக்கு உதவி செய்யறோம், இயற்கை நமக்கு உதவி செய்யுது. நாம அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஸ்திதியில் இருக்க வேண்டும். जैसे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर जाते हैं, तो कमरा हमको पकड़ करके थोड़ी रखता है तुम कहाँ जा रहे करके। हम सहज ही एक कमरे से दूसरे कमरे में कहीं भी जा सकते। इसी तरह ये शरीर हमारे कमरा है, लेकिन इस कमरे से हम परमधाम में जाना चाहते, लेकिन शरीर छोड़ता ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ता? अब जैसे कोई व्यक्ति किसी के घर में रहता है किराए पर, और किराए दिया नहीं, बिना किराए करके जाएगा, तो वो जाने देगा। इसी तरह हमने क्या किया है, इस शरीर में आकर के प्रकृति का दुरुपयोग किया है, उसके साथ हिसाब किताब बनाए। हमको प्रकृति ने अच्छा कान अच्छा करने के लिए दिया था, मुका हमने इसका दुरुपयोग किया, इसीलिए प्रकृति कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हैं? मेरे को तुमको दिखाना है। और वो जैसे ब्रह्मा बाबा भी कभी कभी कहते थे, शिवा बाप दादा, प्रकृति के 5 तत्व मेरे सामने आते हैं और कहते बाबा आप हमको ऑर्डर करो, हम अपना काम शुरू करते हैं, हमको तो लोगों का बदला लेना है, क्योंकि हमारा ये लोगों ने हमारा दुरुपयोग किया है। तो ये विनाश क्या है? प्रकृति का गुस्सा। तो जिन्होंने प्रकृति का ज्यादा दुरुपयोग किया उसको ही ज्यादा तकलीफ होगी। इसीलिए हमें क्या करना है, रोज प्रकृति के 5 तत्वों का चेक करना है। தினமும் நாம இயற்கை 5 தத்துவங்கள், பாஞ்ச் தத்துவம், தினமும் இயற்கையினுடைய 5 தத்துவங்களுக்கு நாம சக்தி கொடுக்கக்கூடியவரா இருக்கணும். எப்படி பாருங்க, ஒரு வீடு இருக்கு, இந்த வீட்ல இருந்து அடுத்த வீட்டுக்கு நம்ம போயிட்டு மறுபடியும் இந்த வீட்டுக்கு வந்துடுறோம். ஒரு ரூம் இருக்கு, இந்த ரூம்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ரூமுக்கு போயிட்டு நம்ம மறுபடியும் இந்த ரூமுக்கு வந்துடுறோம். அதை போல இந்த இயற்கை என்ற சரீரத்துல இருந்து, இந்த வீட்ல இருந்து நாம பரந்தாமம் என்ற ஆத்மாவின் வீடு, பரந்தாமம் என்ற ஆத்மாவின் வீடு, பரிஸ்தாவின் வீடு, பாபா வீடு. பாபா வீட்டுக்கு போறோம், பாபா மிலன் பண்றோம், மீண்டும் இந்த வீட்டுக்கு வந்துடுறோம். அப்போ இப்ப நாம அந்த இயற்கை 5 தத்துவங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதற்கு நாம தேங்க்ஸ் பண்றது. தேக அபிமானத்துல வந்து எந்த கெட்ட கர்மா பண்ணாம நாம நியமப்படி, மரியாதைப்படி சிரேஷ்ட கர்மா செய்யணும். தூய்மையான கர்மா, புண்ணிய கர்மா செய்யணும். பிரகிருதி ஜீத், இயற்கையை வென்றவர் ஆக வேண்டும். इसी तरह हम अगर रोज एक प्रकृति के 5 तत्वों को क्षमा याचना करेंगे, और उसके बाद केवल क्षमा लेने से नहीं चलेगा, लेकिन दोबारा मैं कभी भी इस प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करूंगा। और जैसे प्रकृति के 5 तत्वों की जो गुण है, वो गुण हमें अपनाएंगे। जैसे पानी का गुण क्या है? पानी को जिसमें डालेंगे, अगर गिलास में डालेंगे गिलास का आकार आता है,
अगर उसको प्लेट में डालेंगे, प्लेट का आकार आता है। पानी के ऊपर कोई रेखा खींचो तो रेखा रहती है, नहीं मिट जाती है। इसी तरह पानी जैसे हमें क्या करना है, संस्कार बनाना है। तो ताकि, और रोज हमें प्रकृति के पांच तत्वों को सकाश देनी है, बाबा से किरणें लेकर के उसको पावन बनाने की मदद करनी है। तो जितना हम प्रकृति को मदद करेंगे, विनाश काल के समय प्रकृति हमको सहज अशरीरी बनने में मदद करेगी। हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए प्रकृति का हमें क्या करना है, विघ्नों में निर्विघ्न बनना है। तो उसके लिए प्रकृति को सकाश देने है, उसे माफी मांगनी है, प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना है। நாம இயற்கைகிட்ட மாஃப் கரோ, என்ன மன்னிச்சிரு, சாரி இந்த மாதிரி சொல்லணும். இயற்கைக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணணும், நன்றி சொல்லணும். இயற்கை அப்ப நமக்கு உதவி செய்யும், நாம இயற்கைக்கு உதவி செய்யணும். இயற்கை பாருங்க, நேச்சுரல் நீர், வாட்டர், இயற்கை நீர் இருக்கு இல்லையா, அத ஒரு டம்ளர்ல எடுக்கிறோம், அதனுடைய ஷேப்ல இருக்கும். ஒரு பிளேட்ல ஊத்துறோம், அந்த அந்த ஷேப்ல மாறிடும். அது மேல ஒரு சின்ன கோடு போடுறோம், அது டக்குன்னு மறைஞ்சு போயிடும். அப்ப நம்மோட சன்ஸ்கார் கூட தண்ணீர் போல, வாட்டர் போல இருக்க வேண்டும். அப்போ நாம இயற்கைக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவராக, அதற்கு ரைட்டானவராக, உதவி செய்யக்கூடியவரா இருக்கணும். நம்ம நேர்மறையானவராக இருக்க வேண்டும். मतलब पानी जैसे, मतलब हमें हर एक के साथ घुल मिल कर चलना है। कोई बच्चे के साथ बच्चे बनना, बड़ों के साथ बड़े बनना, इसी तरह घुल मिल चलना, वो पानी के संस्कार ये। और हम अगर कोई भी हमें कुछ भी बोलता है, तो भी हमारे मन में कोई भी प्रकार की निगेटिव बातें ना आए, व्यर्थ बातें ना आए। जैसे पानी के ऊपर लकीर होते ना, पानी के ऊपर लकीर खींचो तो मिट जाते हैं। तो इसीलिए किसी ने कुछ बोला तो भूल जाना, ऐसे पानी के संस्कार। ऐसे प्रकृति, पृथ्वी, पृथ्वी के संस्कार, पृथ्वी के क्या होते हैं, ये एक डालेंगे तो क्या होता है, एक बीज डालेंगे तो कितना देता है। इसी तरह हमारे अंदर भी देने के संस्कार चाहिए, दातापन के संस्कार चाहिए। प्रकृति कितना देती है। और साथ में हवा, हवा में क्या होता है, हल्कापन होता है। तो इसी तरह प्रकृति के जो पांच तत्व हैं, वायु, तेज, ये अग्नि जलाने का काम करती है। तो इसी तरह हमारे अंदर ये पांच तत्वों के संस्कार हम धारण करेंगे, तब जा करके हम, प्रकृति क्या करेंगे, हमको धोखा नहीं देगी। இயற்கை எப்போ நம்மளுக்கு ஏமாற்றம் அடைய செய்யாது, உதவி செய்யும் அப்படின்னா, எப்படி பாருங்க, அக்னி இருக்கு, அக்னி இருக்கு. அடுத்து காற்று, காற்று கூட எப்படிப்பட்டதா இருக்கு பாருங்க, சுவாசம். மணல் இருக்கு, மண் இருக்கு இல்லையா, பூமியானது விதை விதைக்கிறோம். ஒரு வாழைத்தார் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு வாழைக்கன்று வருது. எத்தனை பேருக்கு உதவியா இருக்கு. நாம செய்ததோ ஒரு விதைதான், அது கொடுப்பதோ எத்தனை பலன் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு. நாம கூட பலன் கொடுக்கக்கூடியவராக, நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு போல, இயற்கை போல பலன் கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும். குருகுர்த்தி ஜீத், இயற்கையை வென்றவராக, இயற்கையின் அதிகாரியாக இருக்கணும். அப்ப தினம் தினம் அதற்கு நாம சக்தி கொடுக்கணும். சகாஸ், இயற்கைக்கு சக்தி கொடுக்கக்கூடிய சேவை செய்ய வேண்டும். इविल सोल वाला भी विघ्न आता है। ये इविल सोल क्या है, आपस में हमारे कोई कर्मों की हिसाब किताब होते हैं। आजकल कई एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, तो ये एक्सीडेंट इविल सोल आजकल एक्सीडेंट कराते हैं। कई कई तो किसी के अंदर इविल सोल प्रवेश भी हो जाते हैं। उसे समझो किसी के अंदर गुस्से वाला थोड़ा सा अंश है, तो गुस्से वाला संस्कार वाला आत्मा ही प्रवेश करेगी। तो इसीलिए उन आत्माओं से भी हम क्षमा याचना कर सकते हैं। जिसके साथ भी कभी हमने किसी को पति बन करके मार दिया है, या समझो किसी को जलाया है, तो ये ऐसी आत्माएं भी होते हैं। तो उन आत्माओं को भी हमें उनसे माफी कर सकते हैं। और तब जा करके ये इविल सोल के संस्कारों में साथ में प्रकृति के विघ्नों में निर्विघ्न रह सकते हैं। நாம இந்த ஈவில் சோல் விஷயத்துல கூட எப்படி இருக்கணும்னா, மன்னிக்க கூடியவராக, சாந்தி கொடுக்கக்கூடியவராக, இயற்கையினுடைய விஷயங்கள்லையும் நாம நேர்மறையாக, அதற்கு உதவி செய்யக்கூடியவராக, நன்றி செலுத்தக்கூடியவராக, இப்படி ஒவ்வொன்றின் மீதும் வெற்றி அடையக்கூடிய, நிர்விঘ்னமாக, விக்ன விநாசக்காக இருக்க வேண்டும். और किसी को भी हमें दुख नहीं देना है। हाँ, किसी को, कोई मेरे से नाराज ना हो जाए। अगर कोई नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो वो फिर हमारा बदला लेने के लिए कोई हो सकता है इविल सोल के रूप में आया भी आ सकता है, कोई ना कोई। इसे इसीलिए हमें बिल्कुल सबके साथ, बाबा कहते हैं, किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर के मरना पड़ेगा। इसलिए हमें
कोई किसी के साथ आपस के हिसाब नहीं बनाना है। नहीं तो वही बातें फिर विघ्नों के रूप में अगले जन्म में या अभी आएंगी, और इससे हम टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सबके साथ हमें स्नेह से प्यार से झुक करके चलना। भले मेरी गलती नहीं है तो भी वो बोलता है कोई बात नहीं, पिछले जन्म का समझ करके। तो इसलिए अपने संकल्प को वेस्ट नहीं करना है, अपना पुरुषार्थ तीव्र करना है। इसलिए चारों बातें, इसका विस्तार तो बहुत लंबा है, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया। इन चार विघ्नों में हमें निर्विघ्न बनेंगे, तब हमारा समय सफल होगा। तब जा करके हम निर्विघ्न रह सकेंगे, वायुमंडल अच्छा बना सकेगा, इससे हमारी वृत्ति ठीक हो रहेगी। अगर चारों में से कोई भी विघ्न है तो हमारा बैठ कर योग ठीक नहीं होगा, कर्म में भी योग ठीक नहीं होगा, हमारी स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, ओम शांति। நாம விக்ன விநாசக் நிர்விக்னம் ஆகணும் அப்படின்னா எப்படி மனிதர்கள் நமக்கு டிஸ்டர்ப் பண்றாங்கனாலும் சுப பாவனை தான் இருக்கணும். சுப பாவனை இருக்கணும். துக்கம் கொடுக்க கூடாது, துக்கம் எடுக்க கூடாது. அதே போல பவித்ரதா சன்ஸ்கார் தான் இரண்டாவது. பவித்ரதா சன்ஸ்கார் தான் இருக்கணும். ஆதி சன்ஸ்கார், அனாதி சன்ஸ்கார். அதற்கு ஞானம் யோகம் இருக்க வேண்டும். பாபாவுடைய நியமம் மரியாதைப்படி நடக்க வேண்டும். அடுத்து நம்மளோட ஹெல்த் கூட நல்லா இருக்கணும். மூன்றாவது நம்மளோட ஹெல்த் கூட நல்லா இருக்கணும், சரீரம் நல்லா இருக்கணும். அப்ப இயற்கைக்கு நீங்க சக்தி கொடுக்கக்கூடியவராக இருங்க, நன்றி சொல்லக்கூடியவராக இருங்க அப்படி சொல்றாங்க. கர்ம இந்திரியங்களோட தர்பார் கூட்டணும், கர்மேந்திரிய ஜீத்தா இருக்கணும், கர்ம இந்திரியங்களின் மாலிகா இருக்கணும், ஏமாற்றம் கொடுக்கக்கூடியவராக அந்த மாதிரி நாம இருக்கக்கூடாது. நம்மளோட டைம் தாட்ஸ் எப்பவுமே சுபபாவனை உடையதாக இருக்கணும், சுகம் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கணும். அப்ப சக்தி ஸ்வரூபம், சாந்த ஸ்வரூபம் அப்படி நாம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. அப்போதான் நம்மளால விக்ன விநாசக் நிர்விக்னம் ஆக முடியும். ஸ்திதி நல்லா இருந்தாதான் யோகா பண்ண முடியும், அனைத்தின் மீதும் வெற்றி அடைய முடியும். இப்படி எல்லாம் பாய்ஜி நமக்கு சொன்னாங்க. भाईजी ये चार विघ्न सभी को आना ही है, पुरुषार्थी को नहीं आना, ऐसा है भाईजी? नहीं, जो जो पद प्राप्त करेगा तो जितना करेगा पुरुषार्थ उतना आएगा। अगर जो चुपचाप बैठेगा उसको तो आएगा ही नहीं विघ्न। जो ओ पुरुषार्थ करेगा आगे बढ़ेगा सबको आता है। और कई कई तो ये विघ्न आने के बाद वो खुद ही पुरुषार्थ करना बंद कर लेता है, शांति से रहता है। ओ और जितने लेकिन विघ्न सभी को ज्यादा उतना फिर वो अनुभव भी होता है, आगे भी ओ, बढ़ते हैं फिर। हम्म और कई विघ्न आते हैं तो पुरुषार्थ करना बंद करते हैं। कोई तो विघ्न देना ही है लेकिन लेना नहीं है, ऐसा हम्म। भाईजी? नहीं, यहाँ बाबा कहते हैं, किसी को हम कोई अगर हमको दुख देता है, दुख दो नहीं, लेकिन दुख किसी का लो भी नहीं। हमें खुद भी अगर मेरे कारण कोई डिस्टर्ब है, परेशान है, ये भी एक विघ्न है। इसलिए मेरे कारण कोई डिस्टर्ब ना हो। कई कहते हैं हम खुद निर्विघ्न है, लेकिन आप निर्विघ्न है, कई बार हमारे संपर्क में कोई आता है वो विघ्नों में रहता है, आपसे डरता है, आपसे घबराता है। वो भी नहीं करना, हमें खुद भी निर्विघ्न बनना है, दूसरों को भी मेरे कारण कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, मेरे कारण किसी के संकल्प ना चले, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। भाई जी बाबा मम्मा दादी जी को देखने से हैप्पी कंफर्म, हर एक को हैप्पी हैप्पी अनुभव मिला। हाँ। लेकिन कोई को देखने से डर, ना आपने पूछा ना, डर हम्म। लगता है, क्यों ना ऐसा है? क्यों, उनकी उनकी स्थिति भी इतना ये नहीं ना ये आपस में हमारा इतना, मतलब उनकी स्थिति इतनी पावरफुल नहीं। जो हम्म जिनको देखते हैं ये आपस में हमारा, उनके प्रति भावना भी इतनी अच्छी नहीं है अभी भी। हम्म ये भी है। हम्म दादियों के प्रति हमारी खुद की भावना, हाँ दादी बड़ी है, दादी हम्म बाबा को, बाबा की पालना ली हुए, तो हमारी हम्म भावना भी और साथ में उनके कर्म के ऊपर भी होता है। हम्म। थैंक यू भाई जी। कि ओम शांति। ओम शांति भाई जी। चलो, आज मधुबन में ओम थे इसीलिए। शांति बाई जी। हाँ जी, ठीक है। மதுபன்ல இருக்காங்களாம் பாய்ஜி சொல்றாங்க. हाँ, नहीं तो मेरा तो टूर पर रहता है। पिछले बार दिल्ली में था, भट्टी थी उसी दिन। तो हाँ अभी तो यहाँ मधुबन में, अभी फिर झारखंड के लिए निकलूंगा मैं परसों। சரி. हाँ। பிரதர் சொல்லுங்க. நானும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் சிஸ்டர், அதனால கேட்க அப்படியா? முடியல. அஹ், ஓகே ஓகே. இப்போ அஹ், பகவான் பாய்ஜி பாருங்க, நேத்து பாபா மிலன்லயும் பார்த்தோம் பாய்ஜி வீடியோல.
அந்த அஹ், டிராயிங் பண்ணிட்டு அதுல பாபா சொல்றத பார்த்துட்டே இருந்தாங்க, எழுதிட்டே இருந்தாங்க. கல் பாபா मिलन में भगवान भाई को ज्ञान में उस ड्राइंग में लिखने का ये वीडियो हमने देखा. அவங்க हाँ, அப்படி मैं எழுதுனாங்க. हमेशा हाँ नीचे बैठ करके लिखता था। हाँ, वो पेड़ देखता पर था हमेशा मुरली लिखता लिखता था, हूँ। देखता था लिखता था, अनुभव करता था, मैं भी देखता हूँ. हाँ जय जय। मैं हमेशा नीचे, हर मुरली में लगभग आता ही, कल तो ज्यादा ही था थोड़ा। तो हम्म मतलब हम हमेशा नीचे बैठ करके मस्त, और पार्टी के बीच में वो हम मधुर निवासी कम रहते थे, जहाँ जगह हम्म मिली अपना मैं खुद अपनी बैठने की चेयर लेके जाता था। वो अपने हम्म सम्मान की चेयर पर जाकर कोई चेयर दे या ना दे, अपनी चेयर डाल देता